गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी strain is proportional to stress. That is, stress is proportional to strain or stress equal to constant into strain. Means जब stress और strain proportional हैं तो proportional sign को जब हम replace करते हैं equal sign के साथ तो यहाँ एक constant आता है जो कि क्या होता है capital E, and this capital E is called coefficient of modular elasticity या modulus of elasticity, and that equal to stress upon strain. So there are three types of modulus of elasticity, that is Young's modulus represented by capital Y, bulk modulus represented by capital K, modulus of rigidity represented by eta. First, Young's modulus. Under the limit of elasticity, ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is called Young's modulus. Means हम जानते हैं modulus of elasticity is equal to stress upon strain, but हम stress के types देख चुके हैं, strain के type देख चुके हैं, तो longitudinal stress और longitudinal strain के ratio को हम क्या बोलेंगे? Young's modulus. अब longitudinal stress और strain किस में जनरेट होते हैं? केवल एक वायर में, ऐसे सब्सटेंस में जिसमें लेंथ होती है सॉलिड में। माना कि इनिशियल लेंथ है वायर की L, हमारे पास एक वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? L है। क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका A। अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं कैपिटल F तो उसकी चेंज कितनी हो जाती है? L से डेल L बढ़ जाती है। दैट मीन्स पहले L थी तो डेल L और इंक्रीज हो गई, L प्लस डेल L हो गई, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो गया? डेल L। देन हम जानते हैं स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल L अपॉन L। क्वेश्चन 2, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा? Restoring force F per unit area, that is F upon A equal to 3. So equation 1 is Young modulus equal to longitudinal stress upon longitudinal strain. Equation 2 is longitudinal strain, longitudinal stress. By equation 1, 2, 3, we will put the values. We will have Young modulus equal to F upon A upon del L upon L. या हम इसको और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? Y equal to F into L upon A into del L. This is the final expression for Young modulus. SI unit is Newton per meter square, क्योंकि F की होती है न्यूटन, A की मीटर स्क्वायर और L की यूनिट से del L की यूनिट कैंसिल आउट। सो SI यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किस में होती है? सॉलिड में होती है जिसमें लेंथ होती है। सेकेंड, बल्क मॉडुलस। Under the limit of elasticity, the ratio of normal stress to volume strain is called bulk modulus. Bulk modulus equal to normal stress upon volume strain. अभी हमने young modulus देखा तो उसमें क्या था? longitudinal stress upon longitudinal strain. young modulus किस में था? solids में। bulk modulus किस में होता है? fluids में। Now, so let initial volume is V, force applied F, so volume change V plus V से del V कम हो गया, that is del V, change in volume is del V. Surface area capital A, so normal stress equal to, stress का फॉर्मूला हम जानते हैं F upon A, and strain का फॉर्मूला, volume strain का फॉर्मूला del V upon V। यहाँ माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि फोर्स लगाने पर यहाँ वॉल्यूम में del V कम हुआ है। That's why we have applied minus sign. So it is minus del V upon V. Again, equation 1, equation 2 and equation 3, we will put it. So bulk modulus equal to F upon A upon minus del V upon V. Now we know that F upon A is called fluid pressure. So F upon A को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? fluid pressure P से।
सो हमारा के क्या है, बल्क मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्वल टू माइनस पी, एफ अपॉन ए की जगह माइनस पी इंटू वी अपॉन डेल वी, क्योंकि ये वी ऊपर चला जाएगा। सो हमारा के का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस पी इंटू वी अपॉन डेल वी। नाउ कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, या हम कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। हमने देखा तीनों टाइप में आंसर क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, लेकिन यंग मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस में नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो हम जानते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी होगी, एफ अपॉन ए, एंड शेयरिंग स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, या एफ अपॉन ए इंटू थीटा। सभी का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।